we are starting with new chapter, that is accounting process. Accounting process, and then we have two more chapters, that is bank reconciliation and rectification of errors. So we have to complete these three chapters. First, accounting process. I must say कि accounting process में जो भी आप पढ़ने वाले हैं was entirely your 11th standard. Of course, not entire syllabus, but up to trial balance. Because when we say accounting process, what is first step of accounting process? Accounting process start कैसे होता है? We enter into transactions. There are two types of basically transaction. One is business transaction and personal transaction. Which transactions are not recorded in books of accounts? Personal transaction. Which transactions are obviously recorded? Business transaction. All business transactions are recorded, and recording of business transactions starts with step number 1. What is step number 1? Is you prepare journal. The first step in accounting process is you pass journal entries. But there are certain business whose size is very big. There is a big size of the business, means volume of transactions is more. Volume of transactions is more. मतलब ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि 100 ट्रांजैक्शन 200 ट्रांजैक्शन. देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस which are entered into. तो जर्नल को ये लोग सब डिवाइड करते हैं, एंड जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स का डेफिनेशन ही है दैट इट इज सब डिविजन ऑफ जर्नल. एंड as your 11th standard syllabus is concerned, first subsidiary book was cash book, second subsidiary book is purchase book, next subsidiary book is sales book, then purchase return book and sales return book, and there is one journal proper. तो ये सब set of books हम लोग open करेंगे. If your size of the business is big, subsidiary books के बारे में we will talk at appropriate time. Then after journal is done, the transactions are posted to the next set of books of accounts. Journal is primary set of books of accounts, and after journal, next set of books of accounts is ledger. So ledger में you will open each and every ledger account. Each and every ledger account हम लोग ledger में open करेंगे, whether it is a personal account, whether it is a real or whether it is a nominal account. तो ledger में हम लोग posting करेंगे from journal. Then at the end of a particular period, usually a year, all ledger accounts will be closed. And ledger account में तीन possibility है. Either ledger account will show zero balance, मतलब वो tally हो गया, or it will show a debit balance, or it will show a credit balance. So ये list of balances से you will prepare one statement, and that statement is called as trial balance. This is your step number 3 in accounting process. And step number 4, trial balance के बाद you prepare final accounts. But final accounts is not covered in this chapter, that is accounting process, because we have done separate chapter final accounts. So final accounts is a separate chapter in your foundation. So right now accounting process में हम लोग को यहाँ तक पढ़ना है. So whatever is covered, in fact journal के भी पहले 11th standard में जर्नल में या जर्नल करने से पहले you may have studied something called as classification of account. चलो, now classification of account में there are two approaches. First approach is called as which approach? Traditional approach. First approach is called as traditional approach. As per traditional approach, accounts are classified as real accounts, personal accounts and नॉमिनल अकाउंट्स. तो ये जो है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, जो तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एंड यू आर कंटिन्यूइंग दिस टिल नाउ. कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वी क्लासिफाई द अकाउंट्स एज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, एंड ईच एंड एवरी अकाउंट का दैट इज अ रूल, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ दीज अकाउंट्स जो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है. Personal account has its own rule, real account has its own rule, and nominal account has its own rule. But what is new for you, maybe you may have studied at 11th standard level, but बहुत सारे colleges इसको option में छुड़ा देते हैं, but actually speaking, officially it is there in 11th standard syllabus. That is called as which approach? Modern approach,
of classification of account. We don't have to learn the traditional approach of classification of account, because we all know that as per traditional approach, the accounts are classified as personal account, real account and nominal account. Right now, we are studying classification of account as per which approach? Classification of accounts as per modern approach. Modern approach का बहुत सारा नाम है. You can see the heading. Modern approach is also called as American approach. Modern approach is also called as accounting equation approach. But we will, for the time being, call it as modern approach. अब modern approach क्या बोलता है? As per modern approach, जैसे traditional approach में accounts are classified into 3 categories, वैसे ही modern approach में accounts are classified into 5 categories. Modern approach बोलता है accounts can be either number 1 assets account, number 2 liabilities account, number 3 capital account, number 4 expenses account, and number 5 incomes account. This is the classification of account as per modern approach. So modern approach does not believe in classifying the accounts as personal, real, nominal. वो लोग बोलते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल कुछ करके होता ही नहीं है. हमारे हिसाब से accounts can be classified into these 5 categories, that is assets account, liabilities account, capital account, expenses account and incomes account. And modern approach argues that certain transactions में तुम्हारा traditional approach का rules काम नहीं करता है. Like simple example, what is the journal entry for depreciation? Depreciation account debit to fixed asset account. तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेप्रीसिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट का आप रूल तो लगा लोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन क्रेडिट आपने कौन से अकाउंट को किया है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट. फिक्स्ड एसेट अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट. व्हाट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेप्रीसिएशन में थोड़ी फिक्स्ड एसेट बाहर जा रहा है. सो दिस रूल fails in certain transactions and while recording certain journal entries. तो अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट ये वाला रूल है वो सब जगह पे काम नहीं आता है. And as you move on to the higher levels, more and more you will see that modern approach ज्यादा यूज होता है as compared to traditional approach. Because जब आप इंटर में जाओगे, इंटर में when you pass journal entries इन चैप्टर्स लाइक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा करके चैप्टर्स आएंगे, उसके अंदर जब आप एंट्रीज पास करोगे ना तो यू विल सेल्डमली सी के ट्रेडिशनल अप्रोच काम आता है, क्योंकि आप रूल लगाने जाओगे ना तो रूल बैठेगा ही नहीं उसके अंदर. पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल, समटाइम्स इट डज नॉट फिट. लाइक सिंपल एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज व्हेन यू record journal entry for bad debts. What is the journal entry for bad debts? Bad debts account debit to डेटर्स अकाउंट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. अभी अगेन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बैड डेट्स अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तो रूल लगा लोगे आप. लेकिन डेटर इज पर्सनल अकाउंट. क्रेडिट द गिवर, तो यहां पे डेटर क्रेडिट द गिवर है किधर? वेर इज ही गिविंग? तो बोलेगा नहीं नहीं, ही इज गिवर ऑफ लॉस. ऐसा नहीं होता है. दिस रूल फेल्स. दैट इज व्हाई मॉडर्न अप्रोच हैज कम अप with this classification of account. वो लोग बोलते हैं कि account can fall into any of these 5 categories. Which is the first account? Asset account. अभी asset में सब आ गया, whether it is fixed asset, whether it is debtor, whether it is cash, any asset is asset account. So building भी इधर आ गया, debtor account भी इधर ही आ गया, loan given account भी इधर आ गया. These are all falling under which account? Assets account. Then you have next one is liabilities account. दो वो लोग ने लिखा है liabilities, but it is understood we are talking about which liabilities?
because there are two liabilities. Here they are talking about which liabilities? External liability. Which is the internal liability? तो internal liability is capital, तो उसका सेपरेट अकाउंट है. तो लायबिलिटीज अकाउंट में सब आ गया, बैंक लोन भी आ गया, न क्रेडिटर्स भी आ गया, न आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ गया. ऑल लायबिलिटीज अकाउंट करके एक हेडिंग है. देन थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट. So capital account is number 3. Of course, not need to explain capital account because that is account related to proprietor. अब drawings रहेगा तो भी आप उसको capital account में से less करोगे. तो there is no separate account called as drawings account. वो capital account में ही adjust हो जाता है. And then last two is expenses account and incomes account. In fact, even before traditional approach, accounting was not done by recording journal entries. I repeat my statement, traditional approach के पहले accounting was not done by passing journal entries. Accounting was done with the help of an equation, जो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे, and that is called as accounting equation. What is accounting equation? Accounting equation is what is equal to what plus what? Assets is equal to liabilities plus कैपिटल. असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. मतलब पहले ये लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते थे, ये लोग एक इक्वेशन बनाते थे. ये इक्वेशन ऑलवेज शुड टैली आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल. नंबर 1, सपोज मैंने मशीनरी परचेज किया. अच्छा, उसके भी पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख. तो हाउ विल यू फिट इनटू दिस इक्वेशन? तो एसेट में एसेट विल इंक्रीज बाय 1 लाख. Which asset came? Cash. तो कैश करके एक एसेट जनरेट हुआ 1 लाख. When I say liabilities, तो liabilities यहां पे चेंज नहीं हुआ. ये जो liabilities है, we are talking about which liabilities? External liabilities. So यहां पे external liabilities and यहां पे कैपिटल जनरेट हुआ 1 लाख. So after this transaction equation tallies. उसके बाद आपने बिजनेस चालू किया, ये कैश में से आपने 25,000 का गुड्स परचेज किया. यू परचेज गुड्स वर्थ ₹25,000. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? आपका अभी 2 एसेट पैदा हो जाएगा. वंस कैश विल बिकम हाउ मच? 75,000 प्लस नाउ यू विल हैव व्हाट? स्टॉक ऑफ गुड्स. कितना? 25,000. सामने लायबिलिटी डिड नॉट चेंज and capital did not change. So even after this transaction, your accounting equation tallies. This is your transaction number 1. This is your transaction number 2. चलो transaction number 3 में मैंने 50,000 का मशीनरी परचेज किया. तो अगर मैंने transaction number 3 में 50,000 का मशीनरी परचेज किया, तो नाउ मेरा एसेट में मशीनरी आया कितने का? 50,000. नाउ माय कैश बैलेंस बिकेम हाउ मच? 25,000. I still have stock of rupees how much? 25,000. Liabilities is still 0 and capital is how much? 1 lakh. Okay, now interesting transaction. Suppose मैंने बिजनेस का मैंने रेंट पे किया. I paid rent of ₹15,000. बोलो, will machinery change? No. Will cash balance change? कैश बैलेंस कितना हो गया? 15,000 का मैंने रेंट पे किया, तो कैश बैलेंस कितना हो गया? 10,000. स्टॉक चेंज हुआ कि नहीं हुआ? स्टॉक रिमेन सेम. कितना? 25,000. लायबिलिटीज चेंज नहीं हुआ और कैपिटल भी चेंज नहीं हुआ. तो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कैसे होगा अभी? तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो ये बिजनेस का एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? प्रोप्राइटर बेयर करेगा. तो 15,000 आप किस में से माइनस करोगे? कैपिटल में से माइनस करोगे. तो नाउ कैपिटल कितना हो गया? 85,000. दिस इज व्हाट हाउ द अकाउंटिंग यूज्ड टू टेक प्लेस बिफोर डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड. डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड. उसके पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में लोग करते थे. एक एक ट्रांजैक्शन हुआ तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको एडजस्ट करने का. Then based on this only your double entry system has developed. Then traditional approach developed. Personal, real, nominal, फिर उसका रूल बना, क्योंकि ये
अकाउंटिंग स्क्रैप कर दिया, फिर किसी ने तो पासियोली करके एक इंसान था, उसने डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया, उसने बोला नहीं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का ये रूल होना चाहिए, रियल अकाउंट का ये रूल होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट का ये रूल होना चाहिए. एंड देन आफ्टर ट्रेडिशनल अप्रोच दे डेवलप न्यू अप्रोच विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच. अब दैट इज वाई मॉडर्न अप्रोच देखोगे ना इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि उसका पहला 3 अकाउंट इज फॉलोइंग इन अकाउंटिंग इक्वेशन ओनली, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल. फिर वो लोग ने 2 अकाउंट और ऐड किया, दैट इज एक्सपेंसेस अकाउंट एंड इनकम्स अकाउंट. सो दिस इज पॉइंट 1 ऑफ द डिस्कशन या पार्ट 1 ऑफ द डिस्कशन. सो राइट नाउ मोर और लेस आपके लिए नया है is accounting equation approach. So now we have 5 types of account. Which is the first account? Assets account. Which is the second account? Liabilities account. Which is the next account? Capital account. Which is the next account? Expenses account. And which is the last account? Incomes account. See, primarily या basically assets and expenses both show which balance always. Assets and expenses का always कौन सा balance होता है? डेबिट बैलेंस. आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एसेट्स में इट विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस एंड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस. एंड प्राइमरीली लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम्स, दिस विल ऑलवेज शो विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो ये बेसिक है. हम लोग ने एज पर बैलेंस अब अकाउंट को क्लासिफाई किया है. तो डेबिट बैलेंस में यू हैव एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट बैलेंस में यू हैव लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम्स. एज सच, जैसे आप लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच सुना, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल्स है. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है. वैसे ही मॉडर्न अप्रोच में रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ने थोड़ा बहुत रूल्स ऐसा डिस्कवर किया है कि कैसे ऑपरेट होता है. नाउ किसी भी ट्रांजैक्शन के वजह से, because of any transaction, see, because of any transaction, कौन से अकाउंट को डेबिट करने का, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करने का, उसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल दिया गया है कि भाई पर्सनल अकाउंट का रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. लेकिन अगर हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट को क्लासिफाई किया, तो हाउ टू डिसाइड वेदर द अकाउंट शुड बी डेबिटेड और वेदर द अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड? तो उसके लिए एज सच कोई रूल नहीं है, बट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस हम लोग ऐसा एक रूल बना सकते हैं. तो उसके लिए पहले तो वी शुड नो दैट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस प्राइमरीली शो विच बैलेंस, एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम प्राइमरीली शो. नाउ बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स का ऑलरेडी कौन सा बैलेंस होता है? तो उसको और इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, अगर मुझे एसेट को इंक्रीज करना है तो एसेट का ऑलरेडी, इनफैक्ट दिस रूल वर्क्स फॉर बोथ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड नॉट लायबिलिटीज. अभी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस बोथ शो विच बैलेंस. और किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उनको और क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए. एंड अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट डिक्रीज हो रहा है या एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? चलो एग्जांपल, ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. व्हाट वाज द जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट? Depreciation account debit to fixed asset account. Now do classification as per modern approach. Credit किसको किया है? Fixed asset. Fixed asset is which account? Asset account, liability, capital, expense क्या income? Asset. Fixed asset का already कौन सा बैलेंस होता है? अब depreciation की वजह से fixed asset का वैल्यू बढ़ता है कि कम होता है? तो कम करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? So this is where it works.
सेम वर्क्स फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का एंट्री क्या है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच फेल्स, अब मॉडर्न अप्रोच यूज करो। डेटर्स अकाउंट प्राइमरली शो विच बैलेंस, बिकॉज डेटर्स आर व्हाट? असेट। अब बैड डेट्स की वजह से डेटर बढ़ गया कि कम हो गया? कम करना है तो डेटर्स को अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। यस और नो? एक्सपेंस का एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आई डिस्ट्रीब्यूटेड सम गुड्स एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का जर्नल एंट्री क्या है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट में प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सपेंस है, लेकिन परचेस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। परचेस अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से विच अकाउंट है? नॉमिनल। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट। अब आप ट्रेडिशनल का रूल अप्लाई करोगे ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, विल नॉट वर्क हियर। लेकिन मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो। परचेज को मैंने क्रेडिट किया है बिकॉज परचेज इज माई एक्सपेंस। अब मुझे वो एक्सपेंस को कम करना है, इट इज रिडक्शन इन एक्सपेंस, तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। आर यू फॉलोइंग दिस? सो बेसिकली दिस इज फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, बिकॉज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस बोथ शो विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अब किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर मुझे एसेट और एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है तो उसको और डेबिट करो। अब डेबिट में और डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसको मुझे कम करना है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। सो कैन यू मेक रूल फॉर दीज थ्री अकाउंट्स, बिकॉज दीज थ्री अकाउंट शो विच बैलेंस? हाँ, अब मुझे इनको इंक्रीज करना है। अगर मुझे इनको इंक्रीज करना है तो मैं इसको और क्या करूंगा, और मुझे अगर उनको डिक्रीज करना है तो मैं उनको और क्या करूंगा, और इनफैक्ट मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट। सो दैट इज व्हाट वी हैव गिवन ऑन पेज नंबर 1. These rules of debit credit are new maybe for you. So you can see this table. ये टेबल में those two accounts, assets and expenses account, show debit balances, and liabilities, capital, incomes or revenue show credit balances. So if any transaction के वजह से मुझे ये दोनों को इंक्रीज करना है तो मैं इसको और डेबिट करूंगा, एंड इफ एनी ट्रांजैक्शन की वजह से ये दोनों को डिक्रीज करना है तो मैं इनको क्रेडिट करूंगा। यू कैन अप्लाई दिस रूल इन एनी ट्रांजैक्शन दैट यू कम अक्रॉस, एंड लाइकवाइज फॉर क्रेडिट बैलेंसेस। तो सब कुछ मैंने जो एक्सप्लेन किया इज गिवन ऑन पेज नंबर 1, एंड जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी है। टुडे ओनली वी विल सॉल्व एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस है जो हम थोड़ी देर में करेंगे। चलो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है? आपको क्लासिफाई करना है कि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच दिस इज विच अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट इज एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच विच अकाउंट? रियल। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इट इज विच अकाउंट? असेट। आई सजेस्ट डू वन थिंग, पहले ना आप ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म कर लो, सी वेदर यू नो दैट। पूरे गांव को पूछने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, इट इज नॉट अलाउड। प्लीज टेक इट एज एग्जाम। ये 3 चैप्टर इधर ही बैठ के प्रिपेयर करो। यू डोंट हैव लक्जरी कि आप आराम से बाद में प्रिपेयर करोगे, खुद से करो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में भी आपको सबका हेल्प चाहिए। दिस इज शॉकिंग। मेरे अभी 11th के बच्चों को बिठा के करवाऊंगा ना तो भी वो भी करके देंगे। तो तुम्हारे को तो 2 साल से पढ़ रहे हो, व्हाई यू वांट योर फ्रेंड्स हेल्प? फटाफट आंसर दो। बोलो बिल्डिंग हो गया है, परचेस इज विच अकाउंट? सेल्स। बैंक फिक्स डिपॉजिट, नॉनसेंस। पर्सनल अकाउंट। बैंक फिक्स डिपॉजिट इज रियल अकाउंट, मतलब फिक्स डिपॉजिट कम्स इन, फिक्स डिपॉजिट गोज आउट। क्या पथेटिक, सुपर, मजा आ गया। इसके लिए चैप्टर पढ़ने को बहुत मजा आता है, स्पेशली जब मैंने 11th नहीं पढ़ा। रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, नॉमिनल, वेरी गुड। पर्सनल, हाश मैं ये करवा रहा हूं। कैश, एडजस्टेड परचेजेस। अरे पहले एडजस्ट परचेज का मीनिंग समझाओ। नहीं, मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला? परचेस माइनस परचेस रिटर्न, अनदर नॉनसेंस।
एडजस्टेड परचेजेस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करके एडजस्टेड परचेजेस ट्रायल बैलेंस में कभी कभी देते हैं। और अगर एडजस्टेड परचेजेस ट्रायल बैलेंस में दिया तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग इन द एडजस्टमेंट्स, बट इफ दे गिव यू एडजस्टेड परचेजेस जिसका डेबिट बैलेंस होता है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया परचेज के अंदर। बट आंसर इज नॉमिनल। तो मैंने किधर ना बोला कि नॉमिनल है, मैंने तो फॉर्मूला गलत बोला था। चलो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री रियल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल पर्सनल, सेल्स टैक्स पेएबल पर्सनल, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स कैपिटल पर्सनल, ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट रिसीवेबल पर्सनल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल, उसके बाद प्रीपेड सैलरी, ये सब ऐसा 11th में पढ़ा रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, दिस आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन, सॉरी बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज पर्सनल अकाउंट, ओके मैंने बताया था। अरे इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था इनकम टैक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज माय पर्सनल फेवरेट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट है ये, तो क्या हुआ? दिस इज नॉट इनकम फॉर द बिजनेस, इट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, पेएबल टू द एम्प्लॉय, पर्सनल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉमिनल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल इज रॉन्ग, इट इज पर्सनल अकाउंट। इसके लिए हम लोग ड्रॉइंग्स करते हैं, मतलब एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑफ द प्रोपराइटर, इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट करके कोई अकाउंट ही नहीं ओपन करते हम लोग, इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, तीनों आंसर आ रहे हैं, वाह। इट इज पर्सनल, इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स अवर डेटर। चलो अभी I think modern approach will be much easier to solve. Building asset, चलो नेक्स्ट, परचेसिस को क्या करेंगे आप? एक्सपेंस, सेल्स यू कैन राइट इनकम और रेवेन्यू। चलो, बैंक फिक्स डिपॉजिट असेट, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, वी आर अज्यूमिंग इट इज पेएबल, क्योंकि रिसीवेबल भी हो सकता है। ओके, कैश, adjusted purchase expense, closing inventory asset, investments asset, trade receivable, sales tax payable, discount allowed expense, bad debts expense account, capital account. Yes, drawings is less from capital, correct. Interest receivable account, asset, correct. Next, rent received in advance is prepaid salary, asset. Bad debts recovered, income or revenue, correct. Depreciation, income tax, no, less from capital. Income tax of proprietor is personal expense, it is less from capital. Interest on provident fund, liability. Interest on investment, income or revenue. Life insurance premium, less from capital, it is drawings.
Insurance claim, asset. So this is our modern approach. Now come to question number 2. ये क्वेश्चन में वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज कि वी हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन. जर्नलाइज नहीं करना है. ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है? एनालाइज. अच्छा, एनालाइज कैसे करने का वो हम लोग देखेंगे, बट वी हैव टू डू दिस एनालिसिस यूजिंग बोथ द अप्रोचेस, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. तो 5 ट्रांजैक्शन दिया है. कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज मतलब पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 पे उसका फॉर्मेट दिया है. कैन यू सी? अभी हम लोग यहां पे मिस्टेक है, ये बी है क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच इज बी. पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए करेंगे. अच्छा, ऐसा हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में किया होगा. मतलब जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, हमको ये डिसाइड करना है कि विच आर द अकाउंट्स अफेक्टेड, व्हाट इज दैट नेचर और टाइप ऑफ अकाउंट, फिर उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे एंड आपने क्या रूल अप्लाई किया है. लेकिन रूल अप्लाई करने के लिए वी हैव टू सी ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब पर्सनल रियल नॉमिनल. लेट अस ट्राई फॉर द फर्स्ट वन. चलो, कैन यू टेल मी फर्स्ट वन? साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक of rupees 4,000. Actually it is not 4,000 because ऊपर लिखा है it is rupees in thousands. मतलब 4 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इनफैक्ट 40 lakhs. तो बोलो which are the accounts that will be affected? एक तो कैपिटल अकाउंट, बट when you are identifying the accounts affected, slightly logically करो. First you see which is the debit account that is affected. So which are the 2 accounts that will be affected? Bank account. So write down. And second one is which account? Capital account. Bolo, bank is which type of account? Bank is which type of account? Real. Bank comes in, bank goes out. Very good. तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड का पेपर फिर से चेक करवाना चाहिए. ओके, कैपिटल अकाउंट. अरे कैपिटल इज विच टाइप अकाउंट बोलो ना जल्दी यार. पर्सनल. तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे इसके अंदर? डेबिट. कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे इसके अंदर? क्यों, क्या रूल अप्लाई किया है? बैंक को आप क्यों डेबिट कर रहे हो? रिसीवर. ओके. इज इट सो डिफिकल्ट? हम लोग इतने आगे निकल गए ना अकाउंट्स में, अभी हम लोग को ऐसा बेसिक मत पूछो. ओके, कैपिटल. सी, ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एक होमवर्क में दिया. अभी इसका होमवर्क का आपके पास ये नहीं है, तो होमवर्क का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा. हाँ, ऑब्वियसली लोग कभी भी पूछ सकते हैं. 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तक तो नहीं पूछा है. यू मे बी लकी वन. चलो, कैपिटल अकाउंट को आप क्यों क्रेडिट कर रहे हो? गिवर. उसके लिए क्रेडिट का रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक. हाँ बोलो, विच आर द 2 अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड? एक है कैश अकाउंट. ओके, उसके बाद सिटी बैंक अकाउंट. चलो अभी बताओ, कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट. सिटी बैंक इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? बोलो, किसको डेबिट करोगे? कैश. 200 रुपया विड्रॉ किया कैश में से. अब बताया, मैं नहीं बताया तुमको. कैश अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हो? डेबिट द रिसीवर.
वेरी कम्स इन। अभी भी हमारे दिमाग में, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं अकाउंट्स में, अब ये सब बेसिक मत पूछो हम लोग को। तो इमेजिन मेरे को ये सिखाने के लिए क्या फील होता रहेगा। ओके, सिटी बैंक पर्सनल, बोलो व्हाट इज द रूल? गिवर। हाँ, क्रेडिट द गिवर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, गिवर क्रेडिट किया है। चलो, लोन ऑफ रुपीज 500 रुपए का लोन लिया इसने फ्रॉम मिस्टर वाई, 5 लाख का है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में लोन लेंगे, ठीक है ठीक है। बैंक अकाउंट रखो। अच्छा, दूसरा अकाउंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एनीबडी? वाई अकाउंट नहीं, मजा नहीं आया। लोन फ्रॉम वाई अकाउंट इज बेटर। हाँ, मिस्टर भी लिखो, जगह के हिसाब से पैर फैलाओ, जितना जगह है उसके हिसाब से मिस्टर मिसिस जो भी लिखना लिखो। चलो, बैंक इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, अभी तीसरी बार आ रहा है। अभी तक तो बायट हो जाएगा, बैंक इज पर्सनल। बैंक इज विच पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल, ठीक है। लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, पर्सनल अकाउंट, ओके, 500 रुपीज का लोन। चलो, ये तो बहुत ही सिंपल है, डेबिट भी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट भी पर्सनल अकाउंट है, तो व्हाट इज द रूल? रिसीवर गिवर। सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये सैलरी पे हो चुका है, बोलो व्हाट इज द एंट्री, या किसको डेबिट करेंगे रादर? सैलरी अकाउंट। दिस इज वन अकाउंट दैट इज अफेक्टेड, विच इज अनदर अकाउंट दैट इज अफेक्टेड? अरे कैश नहीं है अभी, बैंक अकाउंट। सब कुछ बैंक में हो रहा है, फिर भी कैश में पे कर रहे हो। चलो, सैलरी इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? किसी ने तो पर्सनल बोला। बैंक इज, फोर्थ टाइम इट इज कमिंग, बैंक भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं पर्सनल हूं। चलो, नॉमिनल को आप डेबिट कर रहे हो, मतलब व्हाट इज द रूल? बैंक को क्यों क्रेडिट किया है? वो एक्साइटेड इसलिए क्योंकि बोला चलो कुछ तो आता है। अभी तक कुछ भी नहीं है, बट ऐसा देख के लग रहा है अभी फाउंडेशन पास हो जाऊंगा। ऐसे सब भी पूछते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। चलो, ये सब मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगा। चलो, नेक्स्ट वन, कैन यू गिव अकाउंट्स अफेक्टेड, सैलरीज ऑफ ₹100 आर स्टिल पेएबल फॉर द मंथ, बोलो विच अकाउंट आर अफेक्टेड, विच अकाउंट डेबिट? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग डेबिट करोगे, सैलरी अकाउंट। And which is the other account that is affected? Outstanding salary, correct. Chalo, one by one, tell me. Salary is which type of account? Nominal. And outstanding salary is which type of account? Yes, representative personal. ₹100, इसको हमने क्यों डेबिट किया है? बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्यों क्रेडिट किया है?
यस, एम्प्लॉई इज गिवर ऑफ सर्विसेज, अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया. आई थिंक दिस इज इजिएस्ट सो फार. फर्नीचर परचेस्ड, एक्चुअली सब इजी था बट वी हैव मेड मेस ऑफ एवरीथिंग. फर्नीचर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. रुकना एक मिनट. अच्छा, पता चल गया आपको? सॉरी. दोस हु आर कॉपिंग, प्लीज अपनी आंखें खोलो. फर्नीचर इज रियल अकाउंट. व्हाट इज रूल दैट यू आर अप्लाइंग? फर्नीचर कम्स इन एंड बैंक इज द गिवर. चलो, फाइनली गुड थिंग्स हैव कम टू एन एंड. ये हम लोग ने जो किया है दैट इज एज पर विच अप्रोच. नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू एज पर मॉडर्न अप्रोच. सो नेक्स्ट पेज पे यू कैन सी इट इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. दोनों टेबल को कंपेयर करो आप लोग. इफ यू कंपेयर बोथ दिस टेबल, ये दोनों टेबल इज ऑलमोस्ट सेम. हेडिंग भी सबका सेम है. इसमें हम लोग ने दो को येलो कलर किया है, टाइप ऑफ अकाउंट एंड रूल. ऐसा क्यों? बाकी सबको क्यों कलर नहीं दिया? बाकी सब सेम रहेगा, खाली टाइप ऑफ अकाउंट और रूल चेंज होगा. ओके, लेट अस ट्राई फॉर द फर्स्ट वन. अच्छा, फर्स्ट बिफोर वी डू दैट, कैन यू टेल मी फर्स्ट एंट्री में विच आर द टू अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड? वो तो चेंज नहीं होने वाला है. विच इज दैट? कैन यू रिकलेक्ट और बताओ कि एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 5. तो बैंक इज विच ऑफ दोस 5? asset. And capital is which out of those 5? Capital. अच्छा, बैंक को आप क्यों डेबिट कर रहे हो? अब आप ये नहीं बोल सकते डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. बैंक इज ऑलरेडी हैविंग विच बैलेंस? नॉर्मली डेबिट. और मुझे उसको और इंक्रीज करना है तो मैं उसको इसलिए डेबिट कर रहा हूं. इन अदर वर्ड्स, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. और कैपिटल को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? बिकॉज कैपिटल इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उसको और इंक्रीज करना है, इसके लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे. बोलो, कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? असेट. सिटी बैंक इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ अकाउंट? असेट. यहां पे कैश विड्रॉ करने की वजह से कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो कैश का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस हो रहा है, उसको मुझे इंक्रीज करना है, इसके लिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं. तो कैश को हमने क्यों डेबिट किया है? बिकॉज इट इंक्रीजेस. लेकिन सिटी बैंक अकाउंट को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? बिकॉज बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. Next, loan of rupees 500 taken from Mr. Y. Bank account and loan from Mr. Y account.
बैंक को हम कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे? असेट अकाउंट. व्हाट अबाउट लोन फ्रॉम मिस्टर वाई अकाउंट? इट्स अवर लायबिलिटी. बैंक अकाउंट को इंक्रीज करना है, इसके लिए हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं. एंड लोन फ्रॉम मिस्टर वाई को भी इंक्रीज करना है, इसके लिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, दैट इज वाई वी आर क्रेडिटिंग. Salaries paid for the month of March. Okay, salaries, which type of account? Expense account. And bank is which type of account as per modern approach? Asset account. Salary is an expense. एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है. एंड ये ट्रांजैक्शन की वजह से सैलरी इंक्रीजेस, इसके लिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं. बट ये ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, तो उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा. Next one is salary account debit. तो सैलरी अकाउंट यहां पे is again expense account. It is increasing, hence उसको हम डेबिट कर रहे हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी, वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं. फर्नीचर एंड बैंक बोथ आर असेट. फर्नीचर इज शोइंग डेबिट बैलेंस. ये ट्रांजैक्शन की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं. कंपेयर बोथ द टेबल्स. दोनों टेबल को कंपेयर करो. यहां पे देयर इज वन करेक्शन, ये बी नहीं है, दिस इज ए. दोनों टेबल को कंपेयर करो. वेदर यू फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच और वेदर यू फॉलो मॉडर्न अप्रोच, डज इट मैटर रिगार्डिंग विच अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, विच अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए? सी एंड रिजल्ट सेम है. आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो या आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, वो चेंज नहीं होता है. ओनली व्हाट चेंजेस इज द वे ऑफ डिसाइडिंग. दोनों तरीके से आंसर आपको वही आएगा. और ये सब हम लोग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन के लास्ट में बोला है not only you are supposed to do analysis, but you are also supposed to tell them the conclusions, जो हम लोग ने ऑलरेडी उधर प्रिंट करके दिया हुआ है. You can see on page number 5. Go through those conclusion. ये सब conclusion एग्जाम में आपको खुद से लिखना पड़ेगा. They may ask you these conclusions.
Read those conclusions. चलो टेक क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3. इसमें 3 चीज मिसिंग है, ए बी सी. फाइंड आउट करके दो. डू इट विथ पेंसिल. वहां पे नीचे भी जगह है, वहां पे रफ में करो. और अगर क्वेश्चन 3 हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो मिसिंग फिगर्स है वो फाइंड आउट करो. डू दिस 2 क्वेश्चंस ऑन योर ओन नाउ. पेंसिल से रफ में करो, फेयर सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे. डोंट वेस्ट टाइम. कौन सा पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? हाँ, नीचे दिख रहा है वो अलग क्वेश्चन है. और पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो मिसिंग फिगर्स है यू आर सपोज टू फाइंड आउट. पूरा कैलकुलेशन लिखो तुम्हारा पेंसिल से, जो भी तुमको जिधर भी दिख रहा है. चलो टेक क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में एबीसी का आंसर डिड यू गेट? बोलो. ए का आंसर कितना है? 42,000. बी का आंसर एंड सी का आंसर, हाँ सो राइट डाउन. चलो 15. ठीक है, राइट डाउन. राइट डाउन क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन. बी फास्ट, लिखो जल्दी. टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल. टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल at the end of the year equal to rupees 50,000. Total liabilities including capital at the end of the year equal to rupees 50,000. ओके चलो, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल 50,000 है. उसमें से एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग कैपिटल इज हाउ मच? 35. So write down next line. Closing capital equal to rupees 35,000. Closing capital equal to rupees 35,000. तो can you tell me C का आंसर क्या हो जाएगा? 15, no? Because out of 50, 35,000 is capital. So write down liabilities at the end of the year. Liabilities at the end of the year. ब्रैकेट में लिखो this one, alphabet C. ब्रैकेट में alphabet C. ब्रैकेट क्लोज. Equal to 50,000 minus 35,000. 50,000 minus 35,000 equal to rupees 15,000. Okay, we found out C, or in fact we have written what is the answer. So now I will find out B. Can you tell me how much will be the assets at the end of the year? 50,000, because assets equal to liability plus capital, no? So write down assets at the end of the year. Bracket में B. Assets at the end of the year. Bracket write down B. Bracket close. Next line लिखो equal to total liabilities including capital at the end of the year. Assets at the end of the year. Bracket में B. Bracket close. Next line equal to total liabilities including capital at the end of the year. Next line equal to rupees 50,000. Okay, how to find out A? Can anybody suggest how to find out A? इसके अंदर हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का में जो हम लोग ने पढ़ा था ना, वो लॉजिक काम आएगा. कैन यू टेल मी फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट विच कैपिटल. क्लोजिंग दिया है ना, क्यों फाइंड आउट करना है? विच कैपिटल?
ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है. ओपनिंग कैपिटल कैसे ढूंढोगे आप? हाँ, तो प्रॉफिट दिया है हम लोग को, सो राइट डाउन. क्या था वो? हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में प्रॉफिट कैसे ढूंढते थे? वी स्टार्टेड विथ विच कैपिटल? सो राइट डाउन. एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग कैपिटल, एवरीथिंग शुड कम इन वन लाइन. सो आप चाहिए तो ऐसा 2 लाइन यूज करो. आई विल शो यू हाउ टू राइट. क्लोजिंग नेक्स्ट लाइन कैपिटल, इक्वल टू, ओके प्रोसीड, बोलो. क्लोजिंग कैपिटल कैसे ढूंढने का? वी स्टार्ट विथ विच कैपिटल? या क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग कैपिटल, राइट डाउन, प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. इवन इफ इट इज नॉट देयर, एक बार वंस एंड फॉर ऑल फॉर्मूला लिख के रखो. इसमें से माइनस हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स, एंड प्लस नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट्स ऑन ड्यूरिंग द ईयर. ओके, आउट ऑफ दिस ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है. क्लोजिंग कैपिटल में वी कैन सब्स्टिट्यूट 35,000 राइट, प्रॉफिट 5,000. चलो फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करके ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 30,000. Opening capital equal to 30,000. अच्छा, why did you find out opening capital? Yes, opening capital plus liabilities at the beginning of the year. Can we say that will be equal to assets at the beginning of the year? That is A. So right now, assets at the beginning of the year, bracket में लिखो A, bracket close, same line equal to liabilities at the beginning of the year plus opening capital. I repeat, assets at the beginning of the year bracket में A equal to liabilities at the beginning of the year plus opening capital. This is accounting equation. चलो नाउ सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर. 12,000 प्लस 30,000, 42,000 शुड बी द आंसर. ये बी का आंसर कितना था? बी का 50. ओके, दैट इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन दे विल आस्क 4 मार्क्स के लिए, छोटा छोटा क्वेश्चन लोग पूछते हैं. चलो टेक क्वेश्चन नंबर 5 विच आई टोल्ड यू टू सॉल्व. डिड यू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स? ओके, जस्ट वन. ए का आंसर कितना है? अच्छा, बी का आंसर कितना है पहले वो बता दो. बी का आंसर कैसे आया? ड्यूरिंग द ईयर सेल्स वर 15,55,000. करेक्ट. आउट ऑफ दैट 15 lakh has been received. So how much is still receivable? 55,000. So that becomes trade receivables. So right now we are starting with question 5 in the books of Mr. Gopi.
नाम वही दिया है, मिस्टर गोपी। चलो नेक्स्ट टाइम दो, गिव द हेडिंग। टोटल असेट्स, से आपको टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर is 14,15,000. Can you see that? So can you tell me how much will be total assets? 14,15,000, because total assets is equal to total liabilities including capital. So right now total assets equal to total liabilities including capital equal to 14,15,000. ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है मालूम है? यू कुड हैव प्रिपेयर्ड वन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाओगे ना तो सब मिसिंग फिगर्स मिल जाएगा. बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अगर आप बनाओगे या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्म में बनाओगे तो आपको सब मिसिंग फिगर्स मिल जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल, कैन यू स्टार्ट एंड टेल मी, बोलो एसेट्स में क्या क्या दिया है. फर्स्ट, मशीनरी विल बी कमिंग ऑन एसेट साइड. ओके, मशीनरी का फिगर इज गिवन टू अस. हाउ मच इज मशीनरी का फिगर? 12 लाख. उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? अकाउंट्स. अकाउंट्स पेबल कम्स ऑन विच साइड? लायबिलिटी. तो अकाउंट्स पेबल का फिगर कितना दिया हुआ है? 1 लाख. उसके बाद अकाउंट्स पेबल के बाद व्हाट इज नेक्स्ट दैट इज गिवन? इन्वेंट्री. इन्वेंट्री विल कम ऑन विच साइड? asset side. So my inventory, I'm putting it on asset side. What is the amount of inventory? 60. Okay, after inventory, what is next? Total liabilities including capital. Matlab, can we say that is the total of liability side? Liability side का total is 14,15,000. So ये आपको total दिया हुआ है 14,15,000. I'm just putting what I know right now. उसके बाद कैश, वी डोंट नो द फिगर ऑफ कैश, लेकिन हम कैश लिख के रख सकते हैं. उसके बाद बैंक, हाउ मच इज द बैंक बैलेंस गिवन? 80,000. ओके, उसके बाद नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स विल कम ऑन द असेट साइड. अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया. बिलो द टेबल दे हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन दैट 15,55,000 है, उसमें से 55,000 अभी तक मिलना बाकी है. So trade receivable is 55,000. This is our requirement part number B. So B का फिगर हम लोग को ऐसे ही मिलेगा. उसके बाद loans. So I am putting loans on liability. What is the amount of loans? वो हमको find out करना है. Missing फिगर है वो. तो loans का फिगर is missing. Next one, opening capital is 10 lakh. What is the formula? If we start with opening capital. ओपनिंग कैपिटल को मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं 10 lakhs. ओके, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल इज डी, मिसिंग. कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर. बोलो कैपिटल इंट्रोड्यूस को इसके अंदर आप क्या करोगे? एड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज 1 lakh एंड ड्यूरिंग द ईयर देयर इज अ लॉस. हाउ मच इज द लॉस? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर इज 35,000. लॉस को हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे? लेस. तो ये सब इंफॉर्मेशन मेरे पास है. क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल. नाउ व्हाट यू डू फ्रॉम हियर, इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट ढूंढ सकते हो. इसका टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ. 11 लाख माइनस 35,000. हाउ मच यू गेट? 1065. बराबर है. अब लायबिलिटी का टोटल आपको दिया हुआ है 14,15,000. सो लोन्स विल बी बैलेंसिंग फिगर, डिफरेंस आएगा. सो बोलो हाउ मच इज द लोन्स का फिगर? 2,50,000. एंड असेट साइड पे कैश मिसिंग है. तो व्हाट कैन वी डू इज टोटल ऑफ लायबिलिटीज इज गोइंग टू बी इक्वल एज टोटल ऑफ असेट्स. अकाउंटिंग इक्वेशन वही हम लोग ने अभी अभी लिखा है. तो कैश का बैलेंस कितना है फाइंड आउट करो. सॉरी, 20,000. एनीथिंग एल्स जो हमको फाइंड आउट करना है? ए, कैश मिल गया, ट्रेड रिसीवेबल मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया. दिस इज योर पॉइंट नंबर डी, दिस इज योर पॉइंट नंबर ए. तो तीनों मिल गया, ए बी सी डी. बैलेंस शीट बना दे तो फटाफट मिल जाता है. एनीवेज राइट डाउन. लेकिन हम ये फॉर्मेट में आंसर नहीं लिख सकते. सो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग. सो कंटिन्यू राइटिंग. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन यू हैव रिटन? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज
including capital. Same line equal to rupees 14,15,000. Same line equal to 14,15,000. Rupees 14,15,000. Next line लिखो, ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखो बी, ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखो बी, ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखो बी इक्वल टू 15,55,000 माइनस 15 लाख, 15,55,000 minus 15 lakhs, that is equal to rupees 55,000. ओके प्रोसीड. तो हम लोग ने पॉइंट नंबर बी ढूंढ लिया. एक लाइन छोड़ के लिखो, अबे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो लिखो टोटल एसेट्स इक्वल टू, टोटल असेट्स इक्वल टू, ये सब सेम लाइन में लिखना पड़ेगा, मशीनरी प्लस इन्वेंट्री प्लस बैंक प्लस अकाउंट्स और ट्रेड रिसीवेबल रादर प्लस कैश. कैश के ब्रैकेट में आएगा ए. इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. आई रिपीट, टोटल एसेट्स इक्वल टू मशीनरी प्लस इन्वेंट्री प्लस बैंक प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश, ब्रैकेट में ए. ओके, नाउ कैश के अलावा बाकी सब हमारे पास है. लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सब्सटीट्यूट 14,15,000 इक्वल टू मशीनरी 12 लाख है प्लस इन्वेंट्री 60,000 प्लस बैंक बैलेंस 80,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 55,000 and plus cash. That is your missing part A. Therefore cash equal to, solve this equation, 20,000. नेक्स्ट लाइन में लिखो क्लोजिंग कैपिटल ब्रैकेट में D इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल ब्रैकेट में लिखो D इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस लॉस. सो नेक्स्ट लाइन इक्वल टू 10 लाख प्लस 1 लाख माइनस 35,000. 10 lakh plus 1 lakh minus 35,000 equal to 10,65,000. करेक्ट. चलो नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर. लास्ट पार्ट में लिखो लायबिलिटीज इक्वल टू 14,15,000. 14,15,000. ये देखो 14,15,000 जो टोटल है लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, उसमें से इफ यू सब्ट्रैक्ट कैपिटल तो यू विल गेट द रिमेनिंग लायबिलिटीज. दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग. लायबिलिटीज इक्वल टू 14,15,000 माइनस 10,65,000. 14,15,000 माइनस 10,65,000 is equal to 1,25,000. Sorry, subtract करो 3,50,000. 14,15,000. 14,15,000 minus 10,65,000 is 3,50,000. Now write down next line, और मे भी एक लाइन छोड़ के
liabilities equal to accounts payable plus loans, ब्रैकेट में C, liabilities equal to accounts payable प्लस लोन, ब्रैकेट में C, 3,50,000 इक्वल टू 1,00,000 प्लस लोन्स। तो ये इक्वेशन से हमको लोन्स का फिगर भी मिल जाएगा। Therefore, loans equal to 2,50,000. Okay, now take question number 4. It's a very good question. Question number 4. Take question 4. Develop accounting equation from the following information available at the beginning of accounting period. So you have to develop accounting equation which is at the beginning of the accounting year. तो beginning of the accounting year में आपको ये सब दिया हुआ है. You are supposed to develop accounting equation, ऐसा clearly लिखा हुआ है. Okay. And also they have given you the balances at the end of the accounting period. ये जो आपको information दिया हुआ है, this is at the end of the accounting period. तो end of the accounting period में भी आपको assets and liabilities दिया हुआ है. And आपको A part में बोला है reset the equation and find out the profit. And last में you are required to prepare balance sheet at the end of the accounting period. तो first we will develop accounting equation at the beginning of the accounting period. So write down accounting equation is given by, बोलो accounting equation is given by, what is the formula? Assets equal to, हाँ तो next line में लिखो assets equal to, accounting equation is given by, next line में लिखो assets equal to liabilities plus capital or capital plus liabilities. Accounting equation equal to capital plus liabilities. Okay, can you check here and tell me, is assets given? Yes. Okay, is liabilities given? Yes. Is capital given? Yes. Okay, so write down at the beginning of the accounting period. Next line में give the heading at the beginning of accounting period. Underline that. Next line में लिखो capital equal to rupees 51,000. So at the beginning of the accounting period, capital equal to rupees 51,000. Next line write down liabilities equal to, next line write down liabilities equal to. Okay, stop writing. Can you tell me इसके अंदर से कौन सा liabilities है? यानी एक मिनट, आपको कैसे पता चला लोन liability है? किधर दिया? It is loan given और loan taken. तो उल्टा भी assumption हो सकता है कि it is asset. हाँ ऑब्वियसली, तो दैट वाज नॉनसेंस आंसर, assumption है. हमारे पास assets है ना टोटल? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? हाँ तो उठाएंगे जरा कैलकुलेटर, एसेट्स का टोटल करो. मतलब कुछ भी बोलने का, कैलकुलेशन करे बिना एसेट्स का टोटल, ये सब का टोटल बोलो. फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल पर कैश एंड बैंक. जल्दी जल्दी हाथ चलाओ कैलकुलेटर पे, बोलो व्हाट इज द टोटल? 68,200. और ये तीनों का टोटल करो 68. हाँ तो हेंस प्रूव्ड, ये दोनों लायबिलिटी होगा ना. दिस टू इज लायबिलिटी, दिस इज कैपिटल. सो कैपिटल प्लस लायबिलिटी
He is giving you total of assets. That is why loan is liability. So write down liabilities already लिखा है. Liabilities equal to, continue writing, loan plus trade payables. Liabilities equal to loan plus trade payables. Next line equal to 11,500 plus 5,700. Next line equal to 17,200. And now next line write down assets equal to fixed assets plus inventory plus trade receivable plus cash and bank. Assets equal to fixed assets plus inventory plus trade receivables plus cash and bank. Next line equal to 12,800 plus 22,600 plus 17,500 plus 15,300. Next line equal to 68,200. Next line write down, so at the beginning of the accounting period, so at the beginning of accounting period, $68,200 is equal to 51,000 plus 17,200. So ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना के हमने दे दिया. That is what they had told us in the first line. Develop accounting equation. So we have developed accounting equation. Assets equal to capital plus liabilities. तो ये हो गया. Now same thing वो लोग end of the year में करने के लिए बोल रहे हैं. वो लोग बोल रहे हैं at the end of the accounting period reset the equation and find out the profit. So first we will reset the equation and find out the profit. So write down एक line छोड़ के at the end of the accounting period. Write down fast next line or maybe one line छोड़ के at the end of the accounting period. Underline that next line. फिर से लिखो liabilities equal to. So can you tell me how many liabilities are there at the end of the accounting period? Two. Which are those two? नहीं आपको कैसे पता चला लोन इज लायबिलिटी? लास्ट टाइम तो हम लोग ने टोटल करके चेक किया था, ये बार तो आप कर भी नहीं सकते हो, कैपिटल क्वेश्चन मार्क दिया है. अरे वो लास्ट टाइम का ही लोन है ना. ओपनिंग बैलेंस कितना था लोन का? 11,500. अभी भी वही है. तो राइट डाउन लायबिलिटीज इक्वल टू लोन प्लस ट्रेड पेबल्स. ये जितना भी हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा. liabilities equal to loan plus trade payable. Next line equal to 11,500 plus 5,800. 11,500 plus 5,800 is equal to 17,300. Next line write down assets equal to, again write down assets equal to fixed assets plus inventory plus trade receivable plus cash and bank. Assets equal to fixed assets plus inventory plus trade receivable plus cash and bank. चलो substitute करो, everything will be substituted. 12,720 plus 22,900 plus 17,500 plus 15,600. 68,720. But this time we cannot set the equation. In fact, you have to use the equation to find out capital. So write down assets equal to capital plus liabilities.
assets equal to capital plus liabilities. Okay, out of this which figures we have? Assets का figure we have, कितना है assets का figure? 68, 720 equal to capital plus liability 17,300. Therefore capital equal to, बोलो how much? 55, 51, 420. Okay, so we have found out closing capital. Check करके बताओ how much was opening capital? 51,000. Opening capital is 51,000. Read A part. A part में वो लोगों ने बोला find out net profit. So how much is net profit? Opening capital was 51. End of the year capital हो गया 51, 420. So profit कितना है? Obviously, what is the assumption in this? Additional capital and drawings दोनों नहीं है. Yes or no? Write down. एक लाइन छोड़ के. Net profit equal to closing capital minus opening capital. Next line equal to 51,420 minus 51,000 is equal to 420. इतना ये लोग से खुश नहीं थे तो बोला प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. सो राइट डाउन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. एक लाइन छोड़ के बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. आई होप एवरीबडी नोस बैलेंस शीट फॉर्मेट. बैलेंस शीट में वी वांट ₹2 का कॉलम है दोनों साइड पे, इनर एंड आउटर. जल्दी जल्दी, बी फास्ट. इसके बाद वी हैव टू डू वन सम ऑफ जर्नल. ओके, बैलेंस शीट में फर्स्ट कम टू एसेट साइड. एसेट साइड में लिखो फिक्स्ड एसेट्स 12,720. एसेट साइड में लिखो फिक्स्ड एसेट्स 12,720. नेक्स्ट लाइन में लिखो इन्वेंट्री 22,900. ऑब्वियसली आउटर कॉलम. इन्वेंट्री 22,900. नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 17,500. कैश एंड बैंक 15,600. कम टू लाइबिलिटीज. फर्स्ट लाइन में लिखो कैपिटल इनर कॉलम 51,000. नेक्स्ट लाइन उसमें आप क्या करोगे? एड नेट प्रॉफिट. एक मिनट, जस्ट बिफोर बैलेंस शीट व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव कैलकुलेटेड जस्ट अबव बैलेंस शीट? हाँ, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा है? माइनस ओपनिंग कैपिटल. उसके बाजू में जगह है तो ब्रैकेट में लिख दो नो ड्रॉइंग्स कॉमा नो एडिशनल कैपिटल. नो ड्रॉइंग्स नो एडिशनल कैपिटल. ओके, कम बैक टू योर बैलेंस शीट. उसमें लिखो नेट प्रॉफिट 420. उसको ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल आउटर कॉलम में लेके जाओ 51,420. नेक्स्ट लाइन लोन्स 11,500. नेक्स्ट लाइन ट्रेड पेबल्स 5,800. चेक करो बैलेंस शीट टैली होगा. टोटल हैज टू बी 68,720. क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन 6 का हम लोग ने नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है. गो थ्रू दिस. कुछ डाउट रहेगा तो मत पूछना. क्वेश्चन नंबर 7. ये लोग ने हमको बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. आई रिमेंबर लास्ट अटेम्प्ट नहीं, उसके पहले वाला सितंबर अटेम्प्ट में वो लोग ने 4 मार्क्स का जर्नल पे कंपलसरी क्वेश्चन पूछा था. 4 जर्नल एंट्रीज पूछा था. इसी इसमें से कोई तो 4 था
क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शंस आर गिवन इन स्टडी मटेरियल. सो एज इट इज वो लोग ने वहां से उठा के 4 ट्रांजैक्शंस 4 मार्क के लिए 4 जर्नल एंट्री पूछ लिया था. सो आई एम अगेन सेइंग डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली, बिकॉज ये चैप्टर में से कुछ ना कुछ तो 100% वो लोग पूछेंगे. इनफैक्ट फर्स्ट 6 चैप्टर्स, विच आर द फर्स्ट 6 चैप्टर्स, इवन आपको जो टेक्स्ट बुक है ना वो बहुत ही हेवायर था. एक्चुअली दिस इज द एंटायर सिलेबस of CA foundation. एक मिनट, just you can observe here. Now of course we are focusing on CA foundation, so I hope you can see. Okay, in case you not, first 6 chapters you can see: accounting process, bank reconciliation, rectification of error, bills of exchange, depreciation and amortization, and inventory. If you see this first 6 chapters, ये 6 chapter का total weightage is 30 to 35%. तुम्हारा पेपर का जो भी मार्क्स है इंक्लूडिंग ऑप्शंस इज 30 to 35% इज ऑफ फर्स्ट 6 चैप्टर. अभी जस्ट जनवरी अटेम्प्ट में डेप्रीसिएशन पे 10 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक 10 मार्क का क्वेश्चन आया था या 5 मार्क का, बैंक रिकंसिलिएशन पे 10 मार्क का क्वेश्चन था, इन्वेंट्रीज पे 5 मार्क का क्वेश्चन था. तो 30 मार्क तो इधर से ही हो गया. एंड फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस में से भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन था. आई थिंक सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न बुक, दोनों में से कोई तो एक बुक पूछा था वो लोग ने, तो वहां पे से 4 मार्क का. सो 34 मार्क्स तो इधर का ही हो गया. सो देर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस फर्स्ट बंच अप्रोक्सीमेटली 30 to 35%. और ये जो रेंज है वो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है. इट इज देयर ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट. द वेटेज इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. सो ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स को लाइटली मत लो. इनफैक्ट बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन वाज एक्चुअली वेरी सिंपल. सो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट फोकस ऑन दिस फर्स्ट 6 चैप्टर्स. एनीवेज, चलो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7. बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यू डू इज प्रिपेयर 2 पेज का जर्नल. जर्नल का फॉर्मेट आई होप सबको याद है. और नरेशन लिखने वाले हो तो 3 पेज का जर्नल बनाओ. नरेशन खुद से लिख लेना, हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे 4-4 लाइन नरेशन के लिए छोड़ देना. प्रिपेयर 2 पेज जर्नल. ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ रोहित. सिर्फ मुझे फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बना के दो रफ में. फेयर जर्नल में कुछ मत करना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का खाली मुझे जर्नल एंट्री बना के दो. खुद से करो, पूरे गांव को मत इन्वॉल्व करो. लेट अदर्स ऑल्सो ट्राई ऑन देयर ओन. ट्राई इट योरसेल्फ. फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री चाहिए. व्हाट इज मीनिंग ऑफ CGST? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, ये उसका मीनिंग हुआ, मुझे लगा फुल फॉर्म था. ओके, व्हाट इज SGST? फुल फॉर्म बता दो. स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. 9% ईच, मतलब बोथ इज 9%. ओके, ठीक है, चलो. GST से मुझे याद आया, मुझे खुद को GSTR 1 फाइल करना है, तब तक मैं वो कर लेता हूं. तुम लोग मुझे एंट्री दो. जर्नल एंट्री चाहिए, जर्नल एंट्री चाहिए. हो गया, हो गया. तो बैठा क्यों है? सेकंड वाला कर. सेकंड हो गया तो थर्ड कर. 10 ट्रांजैक्शन है, 10 का 10 का एंट्री चाहिए. Those who have completed journal entry 1 में बोलो how many accounts debit? 3 accounts debit. Okay. और how many accounts credit? 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं आपके एंट्री में. ठीक है, हो गया है. फर्स्ट एंट्री करते हैं.
चलो फर्स्ट एंट्री में कैन यू टेल मी और अदर फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सैम फॉर ₹40,000 at trade discount of 10% plus CGST and SGST at the rate of 9% each. 20,000 was paid immediately and balance is payable after 3 months. This is the transaction regarding purchase of goods. Okay, तो पहले बोलो which account is involved. पहले कौन सा account debit होगा? Okay, purchases account will be debited by how much? Purchases account will be debited by how much? 36,000. कैसे आया 36,000? 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%. सो दिस इज 36,000. ओके, ये आपका एंट्री है. इज देयर, आपने बोला 3 अकाउंट विल बी डेबिटेड. विच आर द 2 मोर अकाउंट्स दैट विल बी डेबिटेड? इनपुट CGST. व्हाई इनपुट? परचेज किया है तो उसके ऊपर जो जीएसटी होता है दैट इज विच जीएसटी? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट. बोलो इनपुट CGST का परसेंटेज कितना है? 9%. 9% किस पे लगेगा? 36,000 इंटू 9% कितना होता है? 3240. ओके, विच इज द थर्ड अकाउंट दैट इज डेबिटेड? Input CGST and input SGST are which type of accounts? GST का जो accounts है, these are which type of accounts? Personal accounts. Okay, 36,000 into 9%. Amount wise, the amount will be same 3240. ये सबका टोटल करो कितना होता है? 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 टोटल कितना हुआ? हाँ, इसमें से सैम ने हमको कितना पैसा दे दिया? 20,000. सो उसके लिए आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? टू विच अकाउंट? कैश भी कर सकते हो. आई विल प्रेफर बैंक अकाउंट बिकॉज इट इज इंस्टीट्यूट एग्जाम. सो टू बैंक अकाउंट 20,000. बाकी कितना बचता है? 22,480. ये 22,480 के लिए कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करोगे? सैम्स अकाउंट. दिस मच इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर. करेक्ट. चलो, सो ये एंट्री इज राइट. अभी सपोज फॉर एग्जांपल हमको नरेशन बनाने करेगा तो यही ट्रांजैक्शन को हम नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. परचेज गुड फ्रॉम सैम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस 9% CGST एंड 9% SGST. पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड बैलेंस रिसीवेबल आफ्टर 3 months. बस ऐसा करके खुद के लैंग्वेज में आप बना सकते हो. चलो सेकंड ट्रांजैक्शन, ट्राई इट योरसेल्फ, बाद में हम डिस्कस करेंगे. जिसका हो गया यू कैन ट्राई थर्ड वन. सेकंड वाला हो गया? सेकंड वाले का हो गया. सेकंड वाला. चलो सेकंड वाले का बोलो विच अकाउंट डेबिटेड? रेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड. ओके, कितने से डेबिट करोगे रेंट अकाउंट? 30,000. ओके, is there any other account or accounts to be debited? Which are the account or accounts to be debited? हमने रेंट पे किया है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है क्या? नहीं, लिखा तो है इधर. यस और नो? हाँ, तो ये कौन सा जीएसटी होगा? दो ही होता है, इनपुट या आउटपुट. इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? इनपुट. व्हेनेवर यू रिसीव एनी सर्विसेज और वेदर यू परचेज गुड्स, आप उसके ऊपर जो जीएसटी पे. कब इनपुट कब यूज करने का? व्हेन यू आर पेइंग जीएसटी. व्हेन यू आर रिसीविंग जीएसटी तब कौन सा जीएसटी यूज करने का? आउटपुट. सो आप पे कर रहे हो यहां पे तो इट इज इनपुट जीएसटी. तो बोलो विच अकाउंट डेबिट? Input CGST account debit. What is the amount? कितना परसेंट है जीएसटी यहाँ पे? 6%.
Remember, when you are paying GST, you will use input GST account. Bolo, to which account? To which account? Bank account. इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में टू गगनदीप अकाउंट लिखा है, तो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन इज रॉन्ग. इट कैन नॉट बी टू गगनदीप्स अकाउंट बिकॉज इट इज पेड. करेक्ट. ओके, सो फर्स्ट हो गया. चलो थर्ड वन, परचेस्ड फर्नीचर 44,800, IGST 12%. इसका एंट्री, चलो पहले ब्लैंक एंट्री पास करो. कैन यू टेल मी व्हाट इज द ब्लैंक एंट्री? अगेन यू आर परचेसिंग फर्नीचर, सो यू मस्ट हैव पेड GST और रिसीव्ड. तो आप क्या यूज करोगे, इनपुट या आउटपुट? बट दिस टाइम इट इज विद GST. विल यू ब्रेक दैट ऑल्सो एज? नो, IGST में ऐसा ब्रेकअप नहीं होता है. बोलो विच अकाउंट डेबिट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट. This time it is input IGST account debit. To which account? To bank account. तो चलो ये तो बहुत ही सिंपल है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 44,800. नहीं, क्या दिया है ना, परचेज फर्नीचर फॉर 44,800, खत्म हो गया. फर्नीचर डेबिट 44,800, फिर 44,800 का 12% विल बी IGST. नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्यों? दिस 44,800 इज इंक्लूडिंग GST. करेक्ट. तो ये जो 44,800 वो कौन से अकाउंट के सामने आएगा? बैंक अकाउंट के सामने 44,800. सो इफ दिस इज 100, अगर फर्नीचर का वैल्यू 100 है, फर्नीचर का वैल्यू 100 है, तो GST उसके ऊपर 12 रुपीज आएगा. सो बैंक विल बी 112. नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आपको 12 का फिगर या 100 का फिगर मिलेगा. बोलो 100 कितना आएगा? आई थिंक इट इज 40,000. कितना? 40,000. सो यहां पे कैलकुलेशन बताओ. Okay, now be very careful. Next transaction is important and a nice one. Next transaction, goods costing 20,000 were withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and SGST 9%. पहले तुम बनाओ, then I will explain entry. Okay, let us discuss transaction number 4. Transaction number 4, goods withdrawn for personal use. First tell me what is journal entry without GST VST छोड़ दो. What is the entry for goods withdrawn for personal use? Drawings account debit to. Okay, listen carefully. Drawings account debit to which account? Purchases account. What is the amount of goods withdrawn for personal use? 20,000. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अगर कुछ भी नहीं दिया रहता ना, तो हम लोग ये जर्नल एंट्री का अमाउंट विल बी 20,000. नाउ लिसन केयरफुली. कैन यू टेल मी दैट दीज गुड्स विच वर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज वर प्रीवियसली परचेस्ड बाय अस? यस और नो? व्हेन प्रीवियसली दिस गुड्स वर परचेस्ड, इसके ऊपर वी हैड पेड GST. बराबर है. Now these goods are being withdrawn for personal use. In such transaction, we have to reverse or cancel the GST that we had paid. I repeat my statement. In such transaction, we have to cancel or reverse the GST that we had paid. For example, आप चेक करो. Say for example, अगर आप चेक करोगे ना, आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने परचेज किया था.
थोड़े टाइम के लिए मान लो कि वो 36,000 का जो परचेस किया है उसमें से ही हम लोग ने या प्रोप्राइटर ने 20,000 का गुड्स विड्रॉ किया है. सो यहां पे जब मैंने गुड्स परचेस किया था, दैट टाइम आई हैड डेबिटेड परचेस अकाउंट. आई हैड डेबिटेड परचेस अकाउंट थिंकिंग दैट 36,000 इज माई बिजनेस एक्सपेंस. लेकिन आउट ऑफ 36,000 प्रोप्राइटर इज विड्रॉइंग गुड्स ऑफ ₹20,000. तो परचेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं. परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 20,000 बिकॉज नाउ दिस 20,000 इज नॉट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इट इज पर्सनल एक्सपेंस. ओके, सो सिमिलरली जब मैंने ये गुड्स परचेस किया था तब मैंने इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था. इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को क्यों डेबिट किया था? आई हैड आस्क्ड यू इन एंट्री नंबर 1 दैट दिस टू आर विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट को मैंने डेबिट किया है. व्हाई डू आई डेबिट इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी? I debit input CGST and I debit input SGST because this money is receivable in the future when these goods will be sold by us. ये गुड्स को मैं फ्यूचर में बेचूंगा, इसको मैं बेचूंगा तब मैं मेरे कस्टमर के पास से जीएसटी कलेक्ट कर सकता हूं. आर यू गेटिंग दिस ट्रांजैक्शन? व्हाट इज, हाउ डज जीएसटी मैकेनिज्म वर्क? जीएसटी मैकेनिज्म कैसे काम करता है? सपोज देयर आर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टी इज गवर्नमेंट. हु इज द फर्स्ट पार्टी? गवर्नमेंट. देन से फॉर एग्जांपल इट इज, और से फॉर एग्जांपल परचेज ए, दिस इज सी इज कस्टमर. हु इज कस्टमर? हु इज फाइनली कंज्यूमिंग दोज गुड्स. Today as a customer we purchase goods for our own consumption. मैं डीमार्ट में जाऊंगा, डीमार्ट से मैं परचेस करूंगा ना तो बिल देता है. वो बिल में देयर आर सर्टेन आइटम्स जिसके ऊपर मैं जीएसटी पे करता हूं. तो कस्टमर इज परचेसिंग फ्रॉम बी, बी इज परचेसिंग फ्रॉम होम? ए. ओके, तो से फॉर एग्जांपल ए ने बी को गुड्स बेचा, ए ने बी को गुड्स 100 रुपीज में बेचा. मतलब बी ने सिंपल लैंग्वेज में ए से गुड्स परचेस किया है, उसके ऊपर बी ए को जीएसटी पे करेगा. तो ए हैज पेड जीएसटी ऑफ 18 रुपीज. बराबर है. नाउ व्हेन बी इज सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर, विल बी सेल दिस गुड्स फॉर 100 रुपीज? नो, बी इज सेलिंग दिस गुड्स फॉर से फॉर एग्जांपल 150 रुपीज. ये 150 रुपीज पे बी विल नाउ चार्ज जीएसटी. तो करो 150 का 18% कितना होता है? आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट इज 18%. 27. बराबर है. So customer paid finally how much? 177. Now point number 1. How much is GST paid by B to A? 18. So B will call this 18 as which GST? Input GST. Acha, how much is GST received by B from C? 27. So B will call this as which GST? Output GST. बराबर है. Now step number 1. Can you tell me that ये 18 बी ने पे किया है? किसको पे किया है? तो वो ए के जेब में नहीं जाता है. ए हैज टू पे दैट 18 रुपीज टू होम. तो गवर्नमेंट के जेब में कितना गया? 18 रुपीज ऑलरेडी गया. नाउ बी का बारी. बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो बी गवर्नमेंट को 27 पे नहीं करेगा. वो 27 के सामने ही विल सेट ऑफ 18. तो डिफरेंस कितना है? मतलब बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जेब में कितना जीएसटी गया? 27, जिसमें से 18 उसको ए के पास से मिला, 9 उसको बी के पास से मिला. दिस इज हाउ जीएसटी मैकेनिज्म वर्क्स इन अवर कंट्री. तुमने जो जीएसटी पे किया, सपोज इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू टेक एडमिशन विथ अस, यू विल पे जीएसटी टू अस, टू पीए, एंड प्रोफेशनल एकेडमी विल पे टू गवर्नमेंट. वो हमारे जेब में नहीं आता है. दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग दैट जीएसटी इज नॉट इनकम फॉर अस. जेल हो जाएगा हम लोग को. सो जीएसटी इज इनकम ओनली फॉर वन पर्सन इन दिस कंट्री, एंड हु इज दैट? गवर्नमेंट. एंड जीएसटी इज एक्सपेंस फॉर होम?
एंड कस्टमर, फाइनल यूजर, फाइनल कंज्यूमर। अब ये ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। मैंने गुड्स परचेस किया 36,000 में, जिसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया है 3240 मैंने डेबिट किया है, बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज व्हाट इन द फ्यूचर receivable when I sell these goods in the future. But there are certain transaction in which you don't sell the goods in the future. अरे जब मैंने परचेज किया था तब थोड़ी मेरे को मालूम था कि कितना गुड्स विल बी विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने यही गुड्स रिटर्न कर दिया वापस सप्लायर को। आई रिटर्न दिस गुड्स टू सैम, सो आई हैव टू रिवर्स जीएसटी because I'm not selling these goods. If I'm not selling these goods, I will not be able to collect GST on these goods in the future. This is first transaction. Which transaction may you will reverse GST? Number one, when you are returning the goods. Which transaction may you will reverse the GST is when proprietor is withdrawing these goods for personal use. Because now GST becomes proprietor's personal expense. He is the end consumer. Yes or no? तो मैं ये ट्रांजैक्शन में जीएसटी को क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा या कैंसिल करूंगा? ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 3 जिसमें मैं जीएसटी को रिवर्स या कैंसिल करूंगा इज इफ द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इफ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज free sample. Moral of the story, when will I reverse the GST? I will reverse the GST when these goods are not going to be sold. इसको अगर मैं बेचेगा नहीं ना तो मैं उसके ऊपर का जीएसटी को मैं रिवर्स करूंगा। सो अगर मुझे जीएसटी को रिवर्स करना है तो पहले मैंने इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था, तो अब रिवर्स करने के लिए मैं उस अकाउंट को क्या करेगा? Credit. So there will be 2 more accounts that will be credited. Which are those? Input CGST and so 2 input CGST account and 2 input SGST account. We will reverse GST to the extent of 9% of 20,000, which is 1800 and 1800. So what is the total? 23,600. सी रिवर्सल ऑफ जीएसटी के बारे में नोट्स में हम लोग ने तुमको थियरी दिया हुआ है। जस्ट अबाउट दिस यू कैन रीड रिवर्सल और कैंसलेशन ऑफ जीएसटी पेड एंड डेबिटेड टू इनपुट जीएसटी। तो विच 2 ट्रांजैक्शंस में यू विल कैंसल इनपुट जीएसटी? ट्रांजैक्शन नंबर 1 यू विल कैंसल इनपुट जीएसटी इन केस ऑफ व्हाट? परचेस रिटर्न, क्योंकि मैंने वो गुड्स रिटर्न कर दिया है, मैं अभी कस्टमर को बेचूंगा नहीं तो मैं उसके ऊपर का जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकता हूं, तो मैं उतना जीएसटी को रिवर्स करूंगा। जब भी आप कस्टमर को रिटर्न या रादर सप्लायर को रिटर्न करोगे, आई विल रिवर्स द जीएसटी, क्योंकि उतना जीएसटी मैं कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। एंड देन व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड फर्दर, एंड यू कैन सी हियर मैंने ड्रॉइंग्स अकाउंट को 23,600 से डेबिट किया है, बिकॉज नाउ दैट 3,600 इज प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस। He will bear that GST of that goods which he has withdrawn for personal use or consumption, because now he is the end user. When I had purchased these goods, I did not purchase these goods for end consumption. I had purchased these goods for further sale. तो मैंने सोचा था कि ये जो 36,000 का गुड्स मैंने खरीदा है वो मैं फ्यूचर में बेचूंगा, तो ये 3240 का जीएसटी में कलेक्ट करूंगा, बट उसमें से 20,000 का गुड्स तो प्रोपराइटर लेके गया, तो उतने का तो जीएसटी में कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा मेरे कस्टमर के पास से। सो नाउ इट इज प्रोपराइटर्स पर्सनल एक्सपेंस, सो आई हैव मेड प्रोपराइटर डेटर फॉर 23,600. सो रिवर्सल ऑफ जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी. सो दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 4. चलो, टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 5. Again we are returning the goods. So when we are returning the goods, return पे we will have to cancel what?
जीएसटी, क्योंकि हमने सैम के पास से गुड्स परचेस किया था, उसमें से 5000 का गुड्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, 5000 का गुड्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। दिस 5000 का अमाउंट इज ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट? ग्रॉस, इट इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, तो परचेस रिटर्न का एंट्री पास करना पड़ेगा। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द एंट्री विदाउट अमाउंट? परचेस रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सैम्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, और दो अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। विच टू अकाउंट्स? Input CGST and input SGST. So write down Sam's account debit, Sam's account debit, amount बाद में भरो, पहले एंट्री लिखो। Sam's account debit to Sam's account debit to purchase returns account, to input CGST account and to input SGST account। पहले परचेस रिटर्न का अमाउंट भरो, परचेस रिटर्न के बाजू में ब्रैकेट ओपन करो, इट इज 5000 माइनस 10%। परचेस रिटर्न का अमाउंट विल बी 5000 माइनस 10%, 4500। इनपुट CGST के बाजू में ब्रैकेट ओपन करो, इट इज 4500 इंटू 9%, 405, and same bracket will be in front of input SGST, 4500 into 9%, 405। तो सैम्स अकाउंट का डेबिट कितना होगा? 5310, 5310। दिस इज अनदर ट्रांजैक्शन वेर वी आर रिवर्सिंग जीएसटी और कैंसलिंग जीएसटी, क्योंकि उतना जीएसटी मैं कलेक्ट फ्यूचर में नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू सेल दिस गुड्स टू कस्टमर्स। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6। दिस टाइम वी आर सेलिंग गुड्स। सेलिंग गुड्स पे यू विल कलेक्ट जीएसटी, तो आप रिसीव या कलेक्ट करोगे तो दिस टाइम यू विल यूज विच जीएसटी? ओके, तो सेल का एंट्री फर्स्ट, विच अकाउंट डेबिट? सुरजीत अकाउंट डेबिट। सो राइट डाउन सुरजीत अकाउंट डेबिट। सी व्हाट इज एग्जैक्ट जीएसटी लॉ, वो अभी नेक्स्ट 6 महीने में तुम पढ़ना चालू करोगे, बट राइट नाउ वी शुड नो कि जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे करना है हम लोग को। सो दिस इज वन ऑफ द चैप्टर वेर दे आस्क यू जीएसटी का अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री में पूछते हैं वो लोग। सुरजीत अकाउंट डेबिट, अगेन पास एंट्री विदाउट अमाउंट। सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, and two more accounts will be credited. Which are those? Output CGST and output SGST. Sales के सामने फिगर लिखो 28,000, आउटपुट CGST के ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखो 28,000 इंटू 6%। ओके, 28,000 इज इंक्लूडिंग, तो 28,000 एक्चुअली किसके सामने आएगा? सुरजीत के सामने आएगा। सो सुरजीत के सामने लिखो 28,000। हाउ विल यू कैलकुलेट? करेक्ट। सो सुरजीत अकाउंट डेबिट, हियर इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, सो ये सेल्स के सामने नहीं आएगा, सुरजीत के सामने 28,000 आएगा। टू सेल्स अकाउंट, to output CGST account and to output SGST account. See, you have to assume let sales be 100. अगर sales 100 है, it is 6%, ये दोनों का total is 12. So can we say this 28,000 is 112? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेल्स का फिगर मिलेगा। फाइंड आउट हाउ मच? 25,000, एग्जैक्ट 25,000। ओके, सो आउटपुट CGST का ब्रैकेट आएगा 25,000 इंटू 6%, 1,500, एंड आउटपुट SGST का भी आएगा 25,000 इंटू 6%, 1,500। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन, वी विल स्टॉप एट 7। बताओ 7th का लास्ट ट्रांजैक्शन का एंट्री। 28,000 में से 25,200 वाज रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, तो बाकी का 1,800 क्या है? और अदर 2,800 डिस्काउंट व्हाट अलाउड? बोलो एंट्री बोलो।
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट to Surjit's account. चलो डन. What is the amount of or in front of bank account? 25,200. Discount allowed कितना है? 2,800. And to Surjit's account 28,000. Okay. Maximum formats we have given in this particular chapter. We will try to complete this chapter tomorrow. Mostly. अगर नहीं हुआ तो next lecture surely. Mostly नहीं होगा. So more 5 to 6 hours में we will complete this chapter and then bank reconciliation. एक question बाकी है. We will complete next lecture.